अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू नोआ सक्सेस सीरीज़ 2021। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़रीन नैयर और आज हमारे साथ हैं नोआ के एक बहुत ही स्पेशल स्टार किरण नसीम, जिन्होंने CSS 2021 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एलोकेशन हासिल की। आइए हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। Walaikum assalam Zareen, thank you for having me here. No, thank you for joining us and congratulations very much on your success. Thank you so much, alhamdulillah. तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के साथ। हमारे व्यूअर्स को अपनी एजुकेशन और फैमिली के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करें। I belong to an army family, which is why my initial education has been from different cities, from different schools. But eventually I did my O-levels from Beacon House and then A-levels from Beacon House Jubilee campus in Karachi. After that I went to IBA for my bachelor's, which I did in economics and maths. That was a 4-year degree, and then right after it I went for my master's as well, MS in economics, that again from IBA. And that is for my education background. For my family, we are 3 siblings. My father is retired from Pakistan Army. He is a retired brigadier, a doctor by profession. My Maji is a housewife. I have 2 siblings. The elder sibling, I have a sister who has done MBA in digital marketing and she is working right now. Then it's me. And then I have a younger brother who's pursuing his MBBS degree from Rawalpindi Medical University. अच्छा, आपने जितने सिटीज़ में वक्त गुजारा है, सबसे फेवरेट आपका कौन सा रहा है? It's been Karachi. अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर आपने IBA से डिग्री भी ली। Yes, but also in terms of lifestyle, in terms of people, I think Karachi was something that I learned a lot from. A place I learned a lot from. I had different experiences. So Karachi it is. Yeah. और ये मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम एक चीज़ कहते हैं एग्जिस्ट करता है, तो एज ए मिडिल चाइल्ड आपने कोई यूनिक प्रेशर्स या लैक ऑफ प्रेशर एक्सपीरियंस किया है? आई थिंक दैट्स नॉट लैक ऑफ प्रेशर. इन माई फैमिली थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, बिकॉज ऑफ विच आफ्टर एवरी अचीवमेंट बिफोर यू सेलिब्रेट इट यू जंप टू अ न्यू वन. So even when I qualified CSS, my family just celebrated it for let's suppose 2 days, and then we were setting off for a new target, which is like PhD kab kar rahi ho. So that is how middle child syndrome translates into my family at least. Yeah. चले, अच्छी बात है, कम अज़ कम आपसे expectations हैं, एक drive, motivation develop होती है. Yes, I think much of what I've achieved so far would have not been achieved had I not had expectations from myself, my family's expectations, because they give you a drive to do more and more. So that's why I credit most of it to them. अच्छा, आप अपनी फैमिली से फर्स्ट हैं जिन्होंने CSS अटेम्प्ट किया? जी, आई एम द फर्स्ट वन इन माई फैमिली टू गो फॉर दिस एग्ज़ाम. तो आपकी बड़ी बहन पे कोई प्रेशर नहीं था? नो. तो आप पे प्रेशर क्यों डाला आपके पेरेंट्स ने? Basically, while I was doing my master's degree, I was looking at different PhD programs abroad, and meanwhile in 2018 while I was in masters, I already finalized a plan for myself कि 2019 में मुझे University of Queensland Australia को join करना था for a PhD program. It was a very good program. So I came back. I came to Rawalpindi to my family, and इस time में I worked in oil and gas sector. I was also teaching then. Eventually lockdown हो गया and borders got closed and I had to remain in Pakistan. PhD became an online program which was not feasible for me at that time. So I decided कि मैं PhD वाला postpone कर दूँगी. My parents said if you're in Pakistan right now and if you're at home because there was lockdown, why not go for CSS? I also found it reasonable because CSS has an age limit which is 30 years. PhD has no age limit, so I was like okay, let's give it a try. So 2020 I started working for it. 2021 I sat for the exam and 2022 alhamdulillah I'm allocated. अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप आगे PhD नहीं परस्यू करेंगे? Yes, but I just pushed it long way ahead. So in my 30s maybe inshallah. Inshallah. But not in the near future. तो motivation for CSS
हमारे व्यूअर्स को शायद नहीं पता, ऑफ कोर्स नहीं पता, ऑफ द कैमरा हमने डिस्कस किया था कि आपके पेरेंट्स का आइडिया था। जी, CSS was entirely my parents' idea. Entirely. And I hope आप रिग्रेट तो नहीं करती कि आपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके किया? So this has always happened in my life. All of the things that I've achieved, आइडिया सीड डालने वाले हैव ऑलवेज बिन माई पेरेंट्स, एंड देन पढ़ाई में अच्छी थी कहीं ना कहीं, सो आई वुड गो विद इट, तो नेवर रिग्रेटेड. एंड प्लस इट्स द CSS जर्नी itself is so enlightening. You at the end of the day you are wiser. Every day you grow in terms of your how wise you are, so never regretted it, alhamdulillah. Yeah. अच्छा, और कमिंग टू CSS स्पेसिफिकली, स्टार्ट करते हैं हमेशा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन से. ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किस बेसिस पे किए हैं? Okay, first I'll tell what my optional subjects were. There were economics, environmental science, international law, governance and public policy, and US history. Economics and governance and public policy I already had a degree in. Public policy was my minor in my both bachelor's and master's. So governance and public policy and economics, they were from my degree and from my background. International law I found very fascinating. Everything you get to learn about UN, different laws. So international law was purely on my interest. US history was also based on my interest, and also because you have a variety of sources available in the market and online as well. बिल्कुल. तो जब आपकी sources ज़्यादा होती हैं, the more sources you can find, the more confident you become with a subject. कि even if I have, even where it comes a time when you're alone and you have to do it all by yourself, I would have the online resources with me. And environmental science I wanted to keep a lighter subject as well. तो A levels में पढ़ा हुआ था, तो I felt like I could understand at least every term or every jargon that could be found in the exam paper. वो इस basis पे. तो क्या आपको लगता है कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड ने आपको इकोनॉमिक्स और GPP में अच्छा स्कोर हासिल करने में हेल्प किया है कि नहीं किया? Alhamdulillah, in both these subjects I've scored really well, and I would actually like to thank my professors from IBA, my seniors, even my classmates. उन्होंने Dr. Rehan Malik हैं, there's Dr. Himandas Lohano, and there are other teachers as well. I can't name all of them, so I'm sorry for that. But हर चीज़ में I was at least confident that there would never come a time where a question would not make no sense to me. कुछ भी पूछ लें, एटलीस्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड उसमें इतना मैंने टाइम लगाया हुआ है कि मैं उसको किसी ना किसी तरह से तो आंसर कर ही सकूँगी. तो वो वैरायटी भी आ जाती है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, पेपर अटेम्प्टिंग भी आ जाती है, एंड यू ऑल्सो हैव एग्जाम्पल्स टू कोट बिकॉज यू हैव लर्न दोज एग्जाम्पल्स, यू हैव स्टडीड दोज केस स्टडीज़ बिफोर. तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा मोरल आपका हाई रखती हैं. तो कुछ लोग कहते हैं कि जिस चीज़ में या जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री हासिल की है उस सब्जेक्ट को आप ना ऑप्ट करें क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और CSS का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है. तो जब आपने CSS की तैयारी शुरू की, आपने उस वक्त अपना अप्रोच थोड़ा सा CSS सेंट्रिक कर लिया था? I did. So my bachelor's is in economics and maths basically, and maths optionals are present in CSS. Very good. I did not opt for them because at that time I was not confident. Maybe I would not find the sources. अब 4 साल की डिग्री की है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए था. खैर नहीं रहा. दैट वॉज बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अलॉन्ग CSS लाइन्स कि बहुत से लोग यहाँ मैथ्स के सब्जेक्ट्स नहीं लेते. तो क्योंकि मुझे अपनी इन्वायरमेंट से वो वाइब नहीं आई या वो फीडबैक नहीं मिला कि किसी ने लिया हो या ज़्यादा लोगों ने लिया हो, तो शायद इसीलिए मैंने इन सब्जेक्ट से चेंज किया. बट राइट नाउ आफ्टर हैव गिवन CSS, आई थिंक इफ़ यू टेक समथिंग फ्रॉम योर बैकग्राउंड दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. तो और इसके अलावा आप हमारे व्यूअर्स को जो अभी 2023 के एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन करने लगे हैं, आप उन्हें इस बेसिस पे क्या एडवाइस देंगे? First thing, there's a variety of subjects. Abhi, whenever I go to any academy or whenever you sit with any person who's a senior, एक limited option आपके पास रखते हैं. There is no harm in trying something new, so go for it. Secondly, मैं ये तो ज़रूर recommend करूँगी, if you have something, if you have studied a subject for in your educational background, in your bachelor's or master's, go for it. It will give you an edge. आपको सिर्फ paper attempting सीखनी होगी, ना कि पूरा syllabus plus paper attempting. तो it would save your time. Thirdly, there is a myth. Earlier I used to say ये myth है कि there is a scoring trend that comes into play. After I have qualified, I think it's not a myth, it's a reality. Scoring trend is a reality because this time जिस तरह
पाक अफेयर्स में इतने मार्क्स लोगों के नहीं आए, इस्लामिक स्टडीज़ में मार्क्स इतने नहीं है। खैर दीज आर कंपल्सरी, बट तो सारे आपके ऑप्शनल्स में इंटरनेशनल लॉ में मार्क्स नहीं आते। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर। अब पेपर्स अच्छे हुए हैं बट मार्क्स उतने नहीं आए, एंड यू अंडरस्टैंड, आपने अपना पेपर देखा था तो यू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, स्कोरिंग ट्रेंड डज मेक अ रोल। चलें अब किरण हम आते हैं मोर ये लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन पे। फॉर एग्जांपल नोट टेकिंग हुआ, रीडिंग, राइटिंग। आपको क्या लगता है कि CSS की तैयारी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? I think the confidence that you get is both by the knowledge you have and the amount of written practice you have done. Firstly, you can't just jump directly to written practice. आप जितने भी newspapers पढ़ें, I'll be very honest, मैं newspapers वाली बंदी नहीं हूँ। I go for जो आपके online news होते हैं, अल जज़ीरा हो गया, TRT, there are other options as well. तो मैं हर चीज़, मैंने जो अपनी study की है, information is already there. I took it from YouTube. Different channels I've subscribed to them. थोड़ी pictorial memory मेरी बेहतर है rather than just reading, and I zone out in between. So I had to tackle that as well. बाकी for the written exam, doesn't matter how much you read unless you know how to reproduce it on the piece of paper within the time span of 3 hours, and for every subject it's 4 questions. तो पेपर जब तक आप नहीं करेंगे, ऐसे जब तक आप लिख के किसी को चेक नहीं कराएंगे, एवरीबडी आई थिंक हु सिट्स विद यू फॉर एन इंटरव्यू वुड से कि रिटन की प्रैक्टिस, लेकिन इसको जितना भी कम ज़्यादा बोलो उतना कम है, बिकॉज रिटन जब तक आपके हाथ से नहीं गुजरेगा यू वुड नॉट नो। लोग कहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेट्स सपोज इफ आई लुक एट अ स्पाइडर वेब इन समबडी एल्सेस पेपर एंड आई फील लाइक उसका बहुत अच्छा लग रहा है, मॉक्स आर देयर फॉर यू, जो मॉक्स ऑर्गेनाइज नोआ ने भी किए हुए थे। मैं हर मॉक में मैं कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई करती थी जो दूसरे के किसी सैम्पल में अच्छी लगती होगी, बट अनलेस यू डू इट योर सेल्फ आपको फील होगा कि उसके पेपर में अच्छी लग रही है, आपके पेपर में अच्छी नहीं लग रही। एंड दोज आर वेरी गुड पेपर्स दैट यू वांट टू फॉलो, एंड यू नो दे आर टॉपर्स पेपर्स। तो हर चीज़ अपने हाथ से गुजार के देखें, हर चीज़ को ड्रॉ करके देखें, हर नई चीज़ ट्राई करके देखें। मॉक्स इज़ द राइट टाइम टू टेस्ट एंड ट्राई इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे में हमें सर आरिफ एक प्रोसेस सिखाते हैं व्हेन यू आर राइटिंग एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, यू हैव अ थीसिस, एंटी थीसिस एंड अ सिंथेसिस। आई ट्राइड दैट इन माई मॉक्स, इट डिड नॉट वर्क फॉर मी, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स, ये सर आरिफ के और स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा इस पर लिखते हैं। तो यू जस्ट नीड टू try it once, twice, thrice, understand कि ये आप पे काम नहीं कर रहा है, and then start to look elsewhere कि क्या काम करेगा। फिर उनकी दूसरी टेक्निक मैंने यूज़ की and that worked for me. So it's up to you as well. एक इंडिविजुअल की लर्निंग भी है, एक थोड़ा CSS का जो एक फीडबैक आपको बाकियों से मिलता है, सबको मिला के you need to produce something of your own, something original. तो उस चीज़ पे ज़रूर करें। तो ये हुआ आपका पेपर अटेम्प्टिंग एंड एवेल्युएशन बेसिकली। आई डिड अ लॉट ऑफ, मैंने लेक्चर्स इतने कम लेती थी मैं, बिकॉज आई थिंक सेल्फ स्टडी, मैंने बताया आई एम मोर ऑफ अ यूट्यूब पर्सन, सो वो लर्निंग मेरी वहाँ से हुई है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट नोआ इज़ दैट कि आपको एक ही रूफ के अंडर यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू चेक योर वर्क। सर इब्राहिम थे, सर असद एजाज थे, सर ज़फ़र नकवी, सर फरीद, इन सब ने मेरा काम चेक किया। दे वुड पिन पॉइंट कि ये चीज़ आपकी ख़राब है, और मैं वो चीज़ ठीक करके लाती थी। इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट दे वुड टेल मी एक और चीज़ ख़राब है। तो वो आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, देयर इज़ नो एंड टू इट, बिकॉज CSS हैज़ नो लिमिट। तो वो आई थिंक इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट आई थिंक आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू नोआ फॉर दैट। थैंक यू। अच्छा, स्पेसिफिकली ऐसे में आपका हाई स्कोर आया है, इकोनॉमिक्स में हाई स्कोर आया है, और GPP के में आपका हाई स्कोर आया है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं GPP के साथ। कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज हमारे व्यूअर्स को बताएं, या एनी टिप्स एंड ट्रिक्स बिकॉज ऑफ विच यू बिलीव कि आपका अच्छा स्कोर आया है GPP में। ओके, so for GPP there's a constant part and then there's a dynamic part. Constant part is the theory that has been taught at NOA as well, जो आपको बुक्स में मिल जाएगी। अगेन आई डिड नॉट कंसल्ट एनी बुक, मेरी डिग्री थी उसमें, तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ था। द पब्लिक पॉलिसी पार्ट, नॉट द गवर्नेंस पार्ट, वो मैंने उसी वक्त किया था। So that is the static part. For every public policy question you need to have an example, and you don't stick to one example. आप current affairs से देखें, maybe Donald Trump was doing something at that time, मैं उसकी example use करती थी। And I would also focus on giving examples from outside Pakistan so that nothing becomes controversial. कोई प्लस एंड माइनस दो साइड्स ना बन जाए, डिबेट ना स्टार्ट हो जाए। यू नीड टू हैव समथिंग फ्रॉम अनदर कंट्री। उससे आपकी इन्फॉर्मेशन की डाइवर्सिटी भी दिखेगी, एंड एट द सेम टाइम आप अच्छा आंसर भी लिख सकोगे।
So for that, the rest is clean presentation, headings, that these things really matter. आप अपने stats highlight करें, अपनी quotes highlight करें. So for GPP, I think that सबसे ज़्यादा GPP में I think alhamdulillah I was also very privileged कि यहाँ teachers भी अच्छे मिले. सर इब्राहिम थे और मैं बैकग्राउंड में भी जो मैंने IB में पढ़े हुए हैं टीचर से डॉक्टर रेहान मलिक, वो भी बहुत अच्छे थे. तो वो एक बहुत अच्छा सम अप मिलके मैंने प्रोड्यूस किया. तो आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट. और इकोनॉमिक्स में भी यही होगा कि वहाँ से और यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन कंबाइन करके आपने किया यहाँ. लेकिन फिर भी थोड़ा सा CSS स्पेसिफिक आपने फिर अपने प्रिपरेशन को करना होता है. तो इकोनॉमिक्स का भी हमें बताएं या एनी स्पेसिफिक रिसोर्सेज. अगर आपने CSS के लिए कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज नहीं यूज़ किए तो कोई आपके डिग्री में कोई ऐसी किताब जो आपको लगा कि CSS में भी बहुत यूज़फुल था? फॉर इकोनॉमिक्स आई थिंक पेपर 1 इज़ थ्योरेटिकल. सो थ्योरेटिकल पेपर में कुछ नया नहीं था. मैंने जो ऑलरेडी बैकग्राउंड में पढ़ा हुआ था, अपने डिग्री में पढ़ा हुआ था. सो दैट वाज ईजी फॉर मी. कुछ नहीं समझ आती थी, कुछ डिफरेंट चीज़ें होती थी, आई वुड ऑलवेज गूगल देम. डिड नॉट प्रेफर टू एनी बुक, डिड नॉट कंसल्ट एनी बुक इन पर्टिकुलर कोई एक टारगेटेड हो. For paper 2, I think that is where they want to see what is that particular candidate bringing to the table, because it's very applicative. आपने theories पढ़ ली, अब आपको पाकिस्तान पे apply करनी है. This time we had a question that we had to apply economics to the SR's program of Prime Minister, which was very different, and you wanted to write on it because no two people would write the same answer. So that is where you make a mark. और I think बस जितना भी आप current affairs पढ़ें, आप सारे सब्जेक्ट्स को करंट अफेयर्स पे ज़रूर अप्लाई करें. आई डिड दैट विद इंटरनेशनल लॉ, आई डिड दैट विद इकोनॉमिक्स, विद गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इवन विद US हिस्ट्री. सो दे गो हैंड इन हैंड. आप अगर उनको अच्छे से कर रहे हैं और फिर इनको अप्लाई भी करना आता है, दैट वुड हेल्प. और आते हैं फिर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स. इसमें लाइक आई मेंशन आपका एसए में बहुत अच्छा स्कोर है. इस दफ़ा मोस्टली लोगों ने 40 पे पास किया है और माशाल्लाह आपके 50 आए हैं एसए में. तो हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ थोड़ा सा गाइडेंस दें कि एसे का स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ा सा बता दें, आउटलाइन के बारे में बता दें, या वट एवर यू फील इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसे बता दें. समथिंग कि वो आपके नॉलेज को लेके ख़ुद भी अपने एसे में अप्लाई कर सकें. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, when I started as an aspirant, I would go to every person and ask what the essay is. Tell me the structure. एक बार स्ट्रक्चर सुनने से आ नहीं जाता. सो यू गो होम, यू अप्लाई इट, यू ब्रिंग द रिटन फॉर्म एंड यू प्रेजेंट इट टू द टीचर, एंड देन ही वुड टेल यू और शी वुड टेल यू कि इंट्रोडक्शन में ये चीज़ मिसिंग है, या आपने अपना एनेक्डोट बहुत लंबा कर दिया है, या योर इंट्रोडक्शन कुड बी स्लाइस्ड इनटू इवन स्मॉलर कैटेगरीज जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर द इवैल्यूएटर टू गेज कि आपने एग्जैक्टली पॉइंट क्या कन्वे किया है. अगेन लाइक एवरीबडी एल्स सेज, इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योर आउटलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपने आउटलाइन को भी डाइसेक्ट करती थी इन्वायरमेंट पे, पॉलिटिक्स पे, साइंस पे. मैंने अपने कुछ रखे हुए थे कि एनी टॉपिक कम्स, एटलीस्ट मुझे ये पता हो कि मैंने इसको डाइसेक्ट किस तरह करना है. बाकी आई डिड नॉट स्पेसिफाई एनी टॉपिक. पीपल प्रैक्टिस वन पार्ट और वन पोर्शन ऑफ इट मोर. कि लेट्स सपोज हमने हमेशा डेमोक्रेसी पे ही लिखना है या जेंडर इशूज़ पे लिखना है. आई वॉज नेवर फोकस्ड ऑन दैट. Second thing that I would say is that there are literary topics, abstract essays जिनको कहते हैं. So the more you write on it, the more you would understand कि आप किसी भी topic को किस तरह translate कर सकते हो. So a lot of people would not encourage you to write on an abstract essay. I would say अगर अपने आप को ठीक से gauge करना है कि आपकी limit क्या है या आप क्या क्या चीज़ के capable हो, go for abstract essays. Then paragraph writing for every, so introduction is done, outline is done. For paragraph writing, I had the same thing. First you have the topic sentence, then you explain it, then you give a reference, you have a quote, anything which is a fact. जो whatever you say does not matter. You have to substantiate or back it off with किसी और ने भी यही बात कही थी, तो उसकी बात की वैल्यू होती है. And then you have the ending sentence where you loop it back to the topic. तो ये चीज़ें बस मैंने की थी. और I wrote around I think more than 20 essays. इंट्रोडक्शन आउटलाइंस भी मैंने अलग से बहुत लिखी थी. द बेस्ट थिंग इज़ राइट इट एंड गेट इट चेक्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. आप एक टीचर से चेक ना कराएं. हर बंदे का CSS इज़ वेरी डिफरेंट इन दिस रिस्पेक्ट. देयर इज़ नो वन वे ऑफ डूइंग इट, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एग्ज़ाम. किसी ने इंट्रोडक्शन किसी डिफरेंट टाइप से लिख के पास कर दिया, किसी ने किसी और तरीके से कर दिया. सो यू जस्ट सेंड योर एसे टू एवरी वन एंड यू वुड गेट अ गुड फीडबैक एंड यू वुड नो कि किस तरह इम्प्रूव करना है. आई डिड दैट.
और हमारे व्यूअर्स को ओवरऑल CSS के प्रिपरेशन के हवाले से आप क्या एडवाइस देंगी? Once you start, you would always be at level 0. Everybody is, nobody is perfect. कोई perfect है तो I think that's a miscalculation at that person's part. So when you start with 0, सबसे पहले current affairs पे focus करें. Current affairs से आपको at least सबसे बड़ा जो हमारा inertia होता है that is because we are not following what's happening around the world. Start with that. उसके बाद persistence and written जो आपकी copies होती हैं, mocks हो गए, essays लिखना, बाकी paper attempt करना, सिर्फ questions पढ़ के looking at the topic, don't say कि आपको ये आता होगा. Let's suppose if you have CPEC, okay, you know about CPEC. Would you be able to write a 20-mark question on CPEC? That is the question. And sometimes we have the answer in our head, but we are not able to articulate it really well. तो वो हमारे दिमाग में ही आइडिया रह जाता है, एग्जामिनर तक कभी पहुंचा ही नहीं. तो वो आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगा एंड गेट इट चेक फ्रॉम समबडी एल्स, तो उसको समझ आया कि आप क्या कहना चाह रहे थे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली शुरू में उसको नहीं समझ आया होगा. दैट हैपेंड विद मी व्हेन आई गॉट माई वर्क चेक फ्रॉम सर इब्राहिम. मैं बहुत सी चीज़ें मुझे लगता था मैंने कम्युनिकेट करती हैं, बट दे वर नॉट देयर. तो ये चीज़. नंबर 2, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. सो वन ऑफ माई टीचर्स सेड दिस वंस कि यू नीड टू रिस्पेक्ट CSS. रिस्पेक्ट करने का मतलब है आप उसको टाइम दो. You need to respect the people who have qualified it. Abhi even this time there are a lot of people who have qualified CSS after 3 attempts of CSS and 2 or 3 attempts of PMS. तो आप अपनी जर्नी को, अगर if मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी विद इट, बट एक उस बंदे से कंपैरिजन मत रखो जिसने 8 या 6 साल पढ़ा है या जिसने FSC से ही सोच लिया था. They have worked hard for it. You need to respect that and you would be in a much comfortable position after accepting that. तो CSS कंपटीशन का नाम है. there is no benchmark. हर साल कैलिबर और बेंचमार्क मज़ीद ऊपर जाता रहता है, तो you just keep chasing it. तो persistence चाहिए, hard work चाहिए, humility चाहिए, acknowledging that you need to respect somebody वो चाहिए, written work बहुत चाहिए. and I think if you have teachers like we have at NOA, if you have good family as well, तो ये हर चीज़ बहुत अच्छा प्ले करती है, and then eventually you get what you want. अच्छा, आपने 1-2 दफ़ा सर इब्राहिम को मेंशन किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने मुझे भी कहा है कि किरण बहुत ज़हीन है और बहुत इंटेलिजेंट है और इसने कर लेना है. तो आप जिन टीचर्स में आप फेथ रखती हैं या जिनके पास आप जाती हैं, वो आपका काम देख के, आपका प्रोग्रेस देख के वो भी खुश होते हैं और वो भी आपको फिर एक्नॉलेज करते हैं. शायद आपको नहीं था पता कि उन्होंने आपकी इस तरह तारीफ़ की, लेकिन चलें अब आपको मैंने बता दिया. इसके अलावा आप बताएं कि आपका नोआ के साथ ताल्लुक़ किस वक्त बना और कैसे बना? नोआ के साथ आई जॉइन नोआ इन 2020. आई वाज द फर्स्ट बैच एट नोआ जिन्होंने 2021 में अपेयर होना था. आई इन द इनिशियल स्टेज फॉर द रिटन पार्ट आई वुड थैंक सर फरीद. ही वुड चेक माई वर्क और बहुत सर फरीद इज़ वेरी कैंडिड एंड वेरी ओपन. वो ऑनेस्टली आपको जो गलत चीज़ भी होती है वो उस पर भी गाइड करते हैं, सही चीज़ पे तारीफ़ भी करते हैं. तो मेरे रिटन के स्कोर में या रिटन को इम्प्रूव करने में सर फरीद हैज़ अ रोल. सर इब्राहिम, सर असद एजाज, सर ज़फ़र नकवी, इन सब का बहुत वो है. और नॉट दिस अकेडमी जस्ट, मुझे वैसे भी मैंने जिस को कांटेक्ट किया है, एनी सीनियर दैट आई कुड फाइंड ऑन फेसबुक इवन, जिन्होंने अच्छे टाइम मतलब अच्छे स्कोर्स किए हुए हैं, आई वुड लाइक टू मेंशन अ फ्यू. दे वुड ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी, और जितना वो गाइड कर सकते थे, जितना कन्विंस कर सकते थे मुझे करते थे, जितना गाइड कर सकते थे रिगार्डिंग द ग्रुप सेलेक्शन, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स, रिगार्डिंग व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट. तो उसमें पुलिस सर्विस के कुछ सीनियर्स थे, रज़ा नकवी हो गए, दानिया हो गई, फिर फॉरेन सर्विस के थे दिस काजी सलीम. मतलब जब भी मैं कुछ भी पूछूँ दे वर ऑलवेज देयर. बाकी नोआ रिटन के बाद मैं इंटरव्यू में, मैं बहुत रिलीजियसली मैं नोआ आई हूँ, एंड इंटरव्यू में आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम बिकॉज दैट्स अ वेरी डिमांडिंग फेज ऑफ योर लाइफ. सर अली, ही वाज वेरी ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प, वेरी काम, बहुत अच्छे से हर बंदे को उसकी नीड्स के हिसाब से, बहुत कस्टमाइज रोल है सर का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यू फील इंपॉर्टेंट एंड यू फील लाइक जितना आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ही आपको इन रिटर्न मिल रहा है. मैम फ़रा, बात किस तरह करनी है, आर एक्सटेम्पोर स्पीच, आई प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ दोज विद हर बहुत अच्छे तरीके से. सर बाबा खेल हैं, सर फराज हैं, सर फयाज सुमरो हैं, इन सब ने बहुत हेल्प की मुझे.
सर फरीद ने मेरा इंट्रोडक्शन, अ लॉट ऑफ पीपल से साइकोलॉजिकल का इतना स्कोप वो नहीं है, इतना वेटेज नहीं है, बट इफ़ आई रिकॉल हाइंडसाइट में मैं देखूँ तो मुझे लगता है मेरा एलोकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ माई साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम ओनली. तो उसमें सर फरीद ने मेरी बहुत हेल्प की थी. तो इन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी. एंड ऑल्सो आई हैवेंट हैड, मैं ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई सर आतिफ से, बट प्रोवाइडेड दैट यू हैव अ प्लेस एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप दिस प्लेस, जहाँ ऐसे सारे टीचर्स को उन्होंने एक जगह, आई वुड नॉट बी, यू नो, आई वॉज नॉट इन द पोजिशन टू फाइंड सच अ कलेक्शन ऑफ फैकल्टी मेम्बर्स एनीवेयर एल्स. तो आई एम थैंकफुल टू हिम एज वेल बिकॉज उनका, ही इज़ अ पायनियर ऑफ दिस. सो नॉट एनी डायरेक्ट इंटरेक्शन, बट आई थिंक आई ओ अ लॉट टू हिम एज वेल कि उन्होंने ये सेटअप किया हुआ है. और हम जैसे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं. एज एन एस्पिरेंट यू आर ऑलवेज वेरी क्यूरियस एंड यू आर डायरेक्शनलेस. सो इफ़ यू हैव institutes like NOA, if you have teachers like the ones I mentioned, if you have people like Sir Atif, I think you're humble and you're very grateful to them for your success. I am. Thank you so much for all your praise to NOA. Thank you. And लास्ट क्वेश्चन खैर आपने अपने जवाब में बोल दिया है, लेकिन मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर किसी से ये पूछूं कि लोग कहते हैं कि NOA is like a family. So what would you say about that? I would agree with it. It is like a family, and the one, like, अभी हमें realize नहीं होता, but literally 5 minutes before the result you're something else, 5 minutes after the result you're something else, and the first thing or the first person or the first institute you think about to thank after your parents and God, I think it's NOA. So NOA is that for me. Thank you so much, Kiran. Thank you for joining us today, and thank you for giving us your time. Thank you for having me here. Thank you so much. Thank you viewers for joining us today in NOA Success Series 2021. मैं हूँ आपकी होस्ट ज़रीन नैयर, और आज हमारे साथ थी NOA की बहुत स्पेशल स्टार किरण नसीम, जिन्होंने CSS 2021 में इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में एलोकेशन हासिल की. Stay tuned for more success stories. Take care and Allah Hafiz.